Hello freshers, this is Pratiksha from CAD Center. Welcome to our channel. कैसी चल रही है आपकी मार्केट स्टडी? कितने वीडियोस आपने देखे? अगर नहीं देखे सारे वीडियोस तो जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियोस देखना चालू कर दो, क्योंकि उस सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि कौन सी जॉब ओपनिंग्स आ रही है, कौन सी कंपनी की तरफ से आ रही है, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रही है, तो क्या क्या नॉलेज चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब मैंने बताया है। तो अगर नहीं देखे सारे वीडियोस तो वो सारे वीडियोस देखना चालू कर दो ना, क्योंकि इन सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, तो वो यहाँ से सारे वीडियोस देखना चालू कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जॉब ओपनिंग से। तो उससे पहले हम हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को। ओके, थैंक यू कौस्तुभ सर, आपने इतना अच्छा बताया कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो से आपको क्या क्या मिलने वाला है। होपफुली फ्रेशर्स को ये सब समझ में आया होगा और ये वीडियो वो ज़रूर देखेंगे विथ नोटपैड एंड पेन। अब मैं जो बोलने वाली हूँ सारे पॉइंट्स आप लिख लो। तो आज की जॉब ओपनिंग कौन सी है, चलिए देखते हैं। तो जॉब ओपनिंग है बीम इंजीनियर फॉर स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर। बीम इंजीनियर की वैकेंसी है। बीम इंजीनियर करते क्या है वो भी हम देखते हैं थोड़ा फार। अब बीम इंजीनियर्स क्या करते हैं? डेवलप एंड प्रिपेयर ड्राइंग्स, Revit, Navisworks, AutoCAD or associate programs based on direction and design provided by BIM coordinator. Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled the survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to do take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right? Now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what would be asked in that interview. So my recommendation is whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे prepared नहीं हो. तो ये जो fear है उसके भी point आप note down करो. यहाँ पे tension हो रहा है, stress हो रहा है,
ये इसको मेंशन करो। अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो, देखो उसमें कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैट सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या, अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना। अभी जहां पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए, मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए। या सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द बिजनेस। Then prepare detailed drawings in Revit or associated programs of proposed plans, facilities and infrastructure, prints of various original plans and records for internal and external company use। मतलब क्या क्या आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्राइंग्स रेविट के अंदर, रेविट के ऊपर एक ड्राइंग्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, या फिर रेविट होगा या नेविसवर्क्स होगा या ऑटोकैड, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके आपको ड्राइंग्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, डेवलप करना पड़ेगा आपका प्लान। देन आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ टीम मेंबर आपको वर्क करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट या फिर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। देन कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट विद अदर डिसिप्लिन्स, डिजाइन चेंजेस एंड मॉडल चेंजेस। मतलब मॉडल में अगर कुछ चेंजेस आते हैं या फिर डिजाइन में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो भी आपको करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ नेविसवर्क्स सॉफ्टवेयर या फिर रेविट सॉफ्टवेयर या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर में आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपको ये सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। देन अडेयर टू बीम एग्जीक्यूशन प्लान एंड बीम प्रोजेक्ट वर्क फ्लो क्राइटेरिया, follow beam content standards and development procedures, then develop discipline specific beam modeling content for project, ability to export DWF and other formats for collaboration internally and externally। मतलब क्या है कि आपको जो आपका जो प्लान है, आपकी जो ड्राइंग है सॉफ्टवेयर में बनाई हुई, वो आपको DWF फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मेट क्या रहता है तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि अगर आप ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हो तो ऑटोकैड में जो ड्राइंग बनाते हो उसका फॉर्मेट रहता है .dwg। जैसे कि अगर आपका एक इमेज है, आप इमेजिन कर सकते हो आपकी इमेज का फॉर्मेट क्या रहता है, JPEG फॉर्मेट रहता है या फिर PNG फॉर्मेट रहता है, या फिर आपकी PDF जो रहती है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, .pdf फॉर्मेट रहता है। वैसे ही सेव अगर आप ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बना रहे हो और वो ड्राइंग अगर आप सेव करते हो तो उसका फॉर्मेट रहता है .dwg। सेम एज रेविट का फॉर्मेट रहता है .rvt। अगर आप ऑटोकैड की फाइल रेविट में लेना चाहते हो तो उसको इंसर्ट करते हैं, या फिर रेविट की फाइल किसी और सॉफ्टवेयर में लेना चाहते हो तो उसके अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मेट का इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें ऑप्शन रहना चाहिए .dwg का। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो कॉमन एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम रहता है DWF। तो ये जो ऑटोकैड की फाइल DWG फॉर्मेट में बना रहे हो आप, उसको आपको DWF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर रेविट की फाइल आपको DWF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आनी चाहिए, एक्सपोर्ट करने आनी चाहिए। तो ये रहता है DWF फॉर्मेट। तो ये एबिलिटी जो है, मतलब आपको वो जो आपके ड्राइंग्स है वो DWF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना आते हैं या नहीं, वो भी ये मैटर करता है। तो वो आपको आने चाहिए, ऐसे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो ये सब जो है वो किस में है, वो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है। मतलब आप अगर बीम मॉडलर जो इनकी वैकेंसी है, वो जो आप बनना चाहते हो, बीम इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये सब जो है उसका काम जो है वो रेविट, नेविसवर्क और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे है। तो उसके अंदर जो भी मॉडल ड्राइंग्स बनाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब मैंने बताया है शॉर्ट में। एक बार फिर से बताती हूँ, आपको रेविट, नेविसवर्क, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आपकी ड्राइंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपके वर्क जो टीम रहेगी उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट के साथ, और वो जो आपने फाइल्स बनाए हैं, आपने ड्राइंग्स बनाए हैं, उनको आपको DWF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना आना चाहिए। ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बीम इंजीनियर का। अब ये वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से आई है, तो कंपनी का नाम है शाहपुरजी पालुंजी टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी, मतलब किसी सिविल इंजीनियर ने ये कंपनी का नाम नहीं सुना है तो वो तो बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। SP इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, SP। तो शाहपुरजी पालुंजी टेक्निकल सर्विसेज ये जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, इनके पूना में तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑल ओवर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनके। तो ये कंपनी जो है, इनके बारे में अगर आप बताना इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो इनकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताती हूँ इनके बारे में कि ये जो कंपनी है ये ग्लोबली है, डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 17 मेजर कंपनीज। मतलब इनके जो ये जो कंपनी है उनके 70 और कंपनीज है।
मतलब 17 और कंपनीज है जिसका नाम है एसपी कंपनी होगा, एसपी इंजीनियर्स रहेंगे, शापूजी कंपनी, ऐसे नाम थोड़े फार चेंज करके उन्होंने 17 और मेजर कंपनीज बनाई है और ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड है। मतलब ये कंपनी लोकेशन कहाँ पे है इनका, मुंबई हेडक्वार्टर है, मतलब ये जॉब लोकेशन भी मुंबई ही होगा। अब उनके कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे डाला है जैसे कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, देन प्लेन सेंट्रल होटल मैरिएट, देन दुबई का भी एक प्रोजेक्ट है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये कंपनी ग्लोबली है तो दुबई में भी इनका प्रोजेक्ट है। तो इनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी और ग्लोबली प्रोजेक्ट रहते हैं। तो आप सोच लो अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं और आप ये इंटरव्यू क्रैक करते हो तो इतनी बड़ी कंपनी में प्लेस होने का आपको चांस मिलने वाला है। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट भी देखते हैं क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी। यहाँ पे तो पहले तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट डाला है, आप देख सकते हो क्या क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लोकेशन क्या है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है इनकी, तो एक्सपेक्टेशंस है गुड नॉलेज इन बीम प्लेटफॉर्म सच एज रेविट एंड नेविसवर्क्स, ऑटोकैड फॉर ड्राइंग लिंकेज एंड क्लीन अप। मतलब क्या कि आपको कुछ 3 सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, रेविट सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए और नेविसवर्क सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, प्लस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज चाहिए क्योंकि उसमें आपको ड्राइंग्स बनानी है, 2D ड्राफ्टिंग करनी है और वो ड्राइंग जो है वो लिंक करनी चाहिए अदर सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में अगर आप बैठते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कंपनी के लिए। अगर आप नहीं बैठते तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि रेविट और नेविसवर्क सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा। तो रेविट सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए देखते हैं रेविट सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा वीडियो। Revit Architecture. Our programs on Revit Architecture covers the basics from schematic design through to construction documentation. It teaches all about creating a basic floor plan, 3D views, developing the building model, working with drawings and printing sheets, and creating renderings. The course covers all key features of Revit Architecture such as conceptual design, 2D drawings, 3D modeling, quantity takeoff, bidirectional associativity, parametric components, energy analysis. We offer Revit Architecture in certificate, diploma, professional, and master diploma courses. Enroll and understand the concepts of building information modeling and the tools for parametric building design. वीडियो तक। अब नेविसवर्क सॉफ्टवेयर क्या है, रेविट तो हमको पता है कि रेविट अब तक बहुत से मेरे वीडियोस में बताया है मैंने रेविट सॉफ्टवेयर क्या है, रेविट में कितनी सारे ओपनिंग्स आ रही है, बीम इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, सारे कंपनीज में रेविट लगता है। रेविट तो आपको पता है, लेकिन नेविसवर्क सॉफ्टवेयर क्या है। रेविट का जैसे आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म रहता है या फिर स्ट्रक्चर्स रहता है, वैसे नेविसवर्क्स क्या करता है। तो नेविसवर्क्स जो है वो एक क्वांटिटी एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेशन निकाल सकते हो, क्वांटिटी निकाल सकते हो, प्लस सिमुलेशन भी कर सकते हो आप। ओके, अब आपको पता चला नेविसवर्क सॉफ्टवेयर क्या है, रेविट सॉफ्टवेयर क्या है। तो अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं आते, ये दोनों सॉफ्टवेयर नहीं आते, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिजाइन योर ओन यूनिवर्सिटी। अब डिजाइन योर ओन यूनिवर्सिटी क्या है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, प्लस आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो और ये सारे कोर्सेज आप वहाँ पे सीख लो। जैसे कि अगर आपको रेविट कोर्स सीखना है तो यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ये कोर्स कहाँ पे सीखोगे आप। तो उसके लिए आपको स्पेस डिज़ाइन सर्च करना पड़ेगा, उसके अंदर मॉडलिंग फंडामेंटल्स का एक सेक्शन रहेगा और फिर उसके अंदर रेविट का एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें मॉडलिंग बताई है रेविट में। तो वहाँ पे आप रेविट सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, सेम एज नेविसवर्क सॉफ्टवेयर भी आप सीख सकते हो। अदर देन सॉफ्टवेयर, आपको अगर एसपी का इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए आपके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हो यूनिवर्सिटी का सब्सक्राइब करते हो तो वो कहाँ पे जाओगे आप, उसके लिए स्किल अप सेक्शन में जाके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स में जाके आप आपकी इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। सेम आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हो क्योंकि ये कंपनी क्या है कि ग्लोबली है, ग्लोबली इनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि हमने देखा वो प्रोजेक्ट दुबई का प्रोजेक्ट था, तो सोच लो अगर आपके क्लाइंट दुबई का क्लाइंट होगा आपका, तो उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको, उनके जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो वो अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो आपको भी उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा।
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी हमने वो एक आइडिया ढूंढी है जहाँ पे आप आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। तो सिंपल वे में 5 इजी स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक सेक्शन रहेगा, वहाँ पे आप आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। वो भी स्किल अप सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। सिंपल वे में बताया, आप बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आप आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो। अदर दैन सॉफ्टवेयर्स, सिविल सॉफ्टवेयर्स, इंटीरियर के, आर्किटेक्चर के और मैकेनिकल कोर्सेज भी वहाँ पे है यूनिवर्सिटी में। और स्किल अप सेक्शन जैसे मैंने बताया, स्किल अप सेक्शन भी है वहाँ पे। अदर देन इंटीरियर आर्किटेक्चर, आप वास्तुशास्त्र का भी कोर्स कर सकते हो वहाँ पे, स्पेस डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो वहाँ पे। तो ये क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप सब्सक्राइब करो यूनिवर्सिटी को, और ये सारे कोर्सेज आप लाइफ लॉन्ग के लिए सीख सकते हो। तो आप ही की लाइफ क्या है सेट हो जाएगी अगर आप ये सारे कोर्सेज आप सीख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी हमारे यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक स्क्रीनशॉट डाला है जहाँ पे आप देख सकते हो सिविल के कोर्सेज है, स्पेस डिजाइनिंग के कोर्सेज है, डेली रिचुअल फॉर बीइंग हैप्पी, 3ds मैक्स का भी कोर्स है जो इंटीरियर का सॉफ्टवेयर रहता है, देन रेविट का एक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट डाला है जहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, आपको ये सारे कोर्सेज सीखने हैं, आपको किसी अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, इंटरव्यू क्रैक करना है पहली बार में, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पे कॉल करोगे 8983100666। तो इस नंबर पे कॉल करना, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो cadhadapsar@gmail.com पे। तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो और आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाओ। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।